الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم انفاق فی سبیل اللہ کرو، تم خرچ کرو مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر. تو انفقو انفاق سے بن گیا، انفاق بولتے ہیں خرچ کرنے کو. وانفقوا فی سبیل اللہ، تم مال کو خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، لیکن ولا تلقو، تم مت پھینکو اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تلقو بن گیا کس سے؟ یہ بن گیا القا یلقی سے بن گیا ہوگا یہ روٹ اس کا. القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا. ٹھیک ہے، تو ولا تلقو، تم نہ پھینک دو، تم نہ پھینک دو اپنے آپوں کو، بی ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے، تم نہ پھینک دو اپنے ہاتھوں سے، بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم مت پھینکو اپنے آپوں کو اپنے ہاتھوں سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی اور، ڈسٹرکشن کی اور، تباہی کی اور. یعنی کہ اپنے ہی ہاتھ نہیں بننے چاہیے سبب ڈسٹرکشن کے. اس کا مطلب ہو گیا سیلف ہارم نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو خود کو ہارم نہیں پہنچانا ہے، چاہے انسان کسی بھی مصیبت میں کیوں نہ ہوگا اسے سیلف ہارم نہیں کرنا ہے. جب انسان ہوتا ہے نا ڈپریشن میں، کیا کرتا ہے؟ چرس پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اسے کیا کرتا ہے وہ ٹیمپررلی ڈسٹریکٹ کرتا ہے خود کو جب ڈپریشن میں ہو جاتا ہے. لیکن اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خود کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے. لیکن سمجھتا ہے کیا ہے؟ وہ سمجھتا نہیں ہے میں ڈسٹریکٹ. لیکن شراب پینا، جوا کھیلنا، انسان جوا کیوں کھیلتا ہے؟ فائدے کے لیے. پھر جب بڑا نقصان ہوتا ہے ایک ساتھ لاس، بڑا سا کروڑ روپے لاس ہو جاتا ہے زیادہ ڈپریشن کے اندر، لیتا ہے سود لون لیتا ہے ایک ساتھ، پھر بھر ہی نہیں پاتا ہے زیادہ ڈپریشن کے اندر. تو گناہوں سے ہوتا ہے یہ ڈپریشن. تو وہی ہوتا ہے انسان کو. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم مت اپنے آپ کو لے جاؤ اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاکت کی اور. ٹھیک ہے، وہ احسنوں، تم جو ہو تم احسان کا معاملہ کرو، تم اچھا معاملہ کرو، تم اچھے اچھے سے برتو ایک دوسرے کے ساتھ. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. جو احسان کرتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، ان سے ہی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو احسان دو چیزیں ہوتی ہے، الاحسان و الاتقان. اتقان، احسان کا ترجمہ ہوتا ہے اتقان، یعنی کہ کوئی بھی کام کرنا ود ایکسپرٹائز. اگر میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، میں وہ ایکسپرٹائز کے ساتھ کر رہا ہوں، ہے نا، وہ جو ہے نا زر نخ والن کی ویسے نہیں کرنا چاہیے کام. مطلب کوئی اگر پڑھ رہا ہے نا، ڈیپ ورک کرنی چاہیے، شیلو ورک نہیں کرنی چاہیے. اب پتہ ہے ڈیپ ورک سے کتنا فائدہ آتا ہے؟ اللہ کی قسم. مطلب پورا ڈسٹریکشن بند کریں گے. سوشل میڈیا میں کوئی آپ کو نوٹیفیکیشن کھلی ہونی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، وہ سارے بند کر دے رہے ہیں. اور کیا، دروازہ بند ہونا چاہیے جب انسان پڑھے گا، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. 2 گھنٹے پڑھے گا نا ویسے، اللہ کی قسم وہ برابر ہے ان 10 گھنٹوں کے جس پہ انسان کو نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے. یہاں سے پڑھ رہا ہوتا ہے، 2 منٹ فون کھولتا ہے، 2 منٹ اسکرال کرتا ہے، اس سے انسان کو دماغ ہوتا ہے نا ڈائیورٹ اس چیز کی اور. تو دماغ کو واپس ریورٹ کرنا اپنی پڑھائی کی اور، اس میں انرجی جاتی ہے اور اس سے پھر انسان نہیں پڑھ پاتا، کچھ نہیں پڑھ پاتا ہے. تو ڈیپ ورک ہے نا، کتاب لکھی ہے اس نے، کارل مارکس کا نام شاید ہے وہ، ڈیپ ورک ہے نا. اس میں یہی لکھا ہے کہ ڈیپ ورک امپورٹنس کتنی ہے اور شیلو ورک. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ لوگ جو گڈ ڈوورس ہوتے ہیں. احسان بولتے ہیں کوئی بھی چیز اچھے سے کرنے والے کو. حدیث میں آ گیا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جب بندوں میں سے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ ایکسپرٹائز کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کے بعد وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، تم پورا کرو حج کو اور عمرے کو. للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو. یعنی کہ حج اور عمرہ کا احرام باندھ لو، پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے نفلی حج ہوگا یا چاہے نفلی عمرہ ہوگا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں ہیلڈ بیک کیا جائے گا، اگر تمہیں روکا جائے گا. احصرتم مطلب ہو گیا اگر تم روکے گئے. ٹھیک ہے، اگر تم احصار سے بن گیا ہے. احصار کا مطلب ہوتا ہے ظاہری و باطنی سبب سے روکنا. کوئی ظاہری سبب ہے یا باطنی سبب ہے، کوئی ایکسٹرنل انٹرنل فیکٹر ہے، اس سے روکا جا رہا ہے کسی کو، ہیلڈ بیک کیا جا رہا ہے، اس کو بولتے ہیں احصار. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روکے جاؤ گے. تم عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، تم سب ٹھیک ہو، السلام علیکم، تم سب ٹھیک ہو، جو ہے تم، یہ عربی کا لفظ ہے سچ میں. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، then offer whatever can be obtained with ease. تو جو کچھ تمہیں ود ایز میسر ہو جائے گا، میسر سے بن گیا استیسرا. ٹھیک ہے، فمستیسرا، جو کچھ تمہیں آسان ہو جائے گا، جو کچھ میں میسر ہو جائے گا. میسر کیا ہوتا ہے؟ جو آسانی سے مل جاتا ہے انسان کو چیز. من الحدی، حدی بولتے ہیں کس کو؟
सैक्रिफिशियल एनिमल को बोलते हैं अरबी में हदी, ठीक है। हदी किसको बोलते हैं? वो बकरिया, वो भेड़ जिसे हम खश करेंगे, जिसे हम कुर्बान, खश मुझे नहीं बोलना है, जिसे हम ज़िबाह करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हदी। फमस्तई सरा मिनल हदी, तो जो तुम्हें आसान हो जाएगा हदी में से, तुम उसे लो। वला तहलिकू रुऊसकुम, और तुम हलक न करो अपने सिरों का। हलक किसको बोलते हैं? हलक बोलते हैं टकला करने को, ठीक है। और तकसीर बोलते हैं बाल काटने को। हलक क्या होता है? टकला करना, ठीक है। हल्लाक बोलते हैं बार बार को, टकला करने वाला, शेव करने वाला, ऐसे बोलते हैं हलक शेव, टकला नहीं, शेव। चाहे इंसान दाढ़ी को शेव कर रहा है, अस्तगफुरुल्लाह, या बालों का शेव कर रहा है, वो कर सकते हैं। दाढ़ी का शेव करना हराम है। वला तहलिकू, और तुम ना हलक करो, तुम ना शेव करो, रुऊसकुम अपने सिरों का, हत्ता यबलुगल हदियु, यहाँ तक कि पहुंच ना जाए हदी, यानी कि सैक्रिफिशियल एनिमल, महिल्लहु, अपने डेस्टिनेशन तक वो नहीं पहुंच जाएगा। उसे कुर्बान करने के बाद ही काटते ना, उम्र में क्या काटते? बाल काटते हैं। हज में जब एंड में बाल बाल काटते हैं वगैरह, या उम्र में जब, ऐसे उम्र में काटते हैं ना एंड में बाल। तकसीर बोलते हैं, हलक कर सकते हैं या तकसीर कर सकते हैं, यानी कि इंसान टकला भी कर सकता है और छोटे बाल भी कर सकता है। लड़कियों को थोड़े से टिप्स काटने होते हैं बस। अब लड़का क्या कर सकता है? इधर टकला या बाल काट सकता है। ज़्यादा बेहतर क्या है? ज़्यादा बेहतर है टकला करना ही। फमन कान मिनकुम मरीदन, पस जो तुम में से बीमार होगा, औ बिही अदन, या उसे कोई इजा पहुंचा होगा, एलमेंट उसे पहुंचा होगा, मिर रअसी, उसको दर्द होगा, एलमेंट होगा सिर के अंदर, कोई इजा पहुंचा होगा उसको सिर में, दर्द होगा, दर्द होगा सिर के अंदर, ठीक है। फफिदियतुन मिन सियामिन, तो उसे फिदिया देना है रमजान के रोजों में से। रमजान नहीं, मैं बता रमजान के रोजों में से, फास्टिंग ना, फास्टिंग में से। औ सदक़त, या चैरिटी उसको देनी है। औ नुसुकिन, या उसको सैक्रिफाइस करना है, कुर्बानी करनी है। फ़इज़ा अमिन तुम, हम देखेंगे तफसीर बाद में। फ़इज़ा अमिन तुम, बस जब तुम सिक्योर हो जाओगे। फमन तमत्तअ बिल उम्रति, जो तुम में से तमत्तु करेगा, तमत्तु बोलते हैं टुक एडवांटेज, एडवांटेज उठाना, फायदा उठाना, ठीक है, बिल उम्रति, उम्र के साथ भी, इलल हज, यानी कि वो फायदा ये उठा रहा है कि वो हज के साथ उम्र भी साथ में कर रहा है। फमस्तैसरा, बस जो चीज़ वट एवर उसको मैसर हो जाएगा, उसको आसानी के साथ मिल जाएगा, मिनल हदी, सैक्रिफिशियल एनिमल से, उसको वो कर रहे हैं कुर्बानी। फमन लम यजिद, बस जो शख्स नहीं पाएगा, फसियामु, उसे रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए। सलासती, रमज़ान के नहीं, मैं फिर से रमज़ान, उसके रोज़े रखने चाहिए। सलासती अय्यामिन, 3 दिन, फिल हज, हज के अंदर, और सबअतिन, और 7 दिन, इधा रजातुम, जब तुम रिटर्न करोगे, ठीक है। उसे 3 दिन रोज़े रखने हैं हज के अंदर, और 7 दिन जब तुम रिटर्न करोगे। तिल का आशरतुन कामिला, ये 10 दिन मुकम्मल हो गए, कामिला, और इन ऑल, यानी कि मुकम्मल। ज़ालिका, ये उसके लिए, लिमन लम यकुन, जो नहीं होगा, अहलहू, उसकी जो फैमिली होगी वो नहीं होगी, हादिरिल मस्जिद हराम, वो उसकी फैमिली प्रेजेंट नहीं होगी मस्जिद हराम के पास, यानी कि वो मक्का का जो है रेजिडेंट नहीं होगा। उसके लिए ये सब हुक्म जो हम पढ़ रहे हैं आज तक, वो उसके लिए है। जो मतलब मक्का के इर्द गिर्द नहीं रहता, जो हुदूद हरम, हुदूद हरम में जो नहीं रहता होगा, उसके लिए ये। वत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह ताला से। वअलमू, तुम जानो, अन्नल्लाह, कि बेशक जो अल्लाह ताला है, शदीदुल इक़ाब, वो ज़बरदस्त बदला लेने वाला है, और शदीद इक़ाब, पनिशमेंट और बदला लेने वाला है, ठीक है। तो ये आयत थी, ये थोड़ी मुश्किल आयत है समझनी, सच में। तफसीर पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है, आप ऐसे ही सुनिएगा। पहली बात, हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे। जो यहाँ पे आ गया ना, पहली के हदी, हदी क्या होता है? सैक्रिफिशियल एनिमल, कुर्बानी का जानवर, जो 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 अशर हरम में, मस्जिद हराम में कुर्बानी के लिए अ, भेजा जाए, वो यहाँ जिसको मतलब कुर्बानी के लिए भेजा जाता है, उसको बोलते हैं हदी। और है ना महिल हो, यहाँ तक कि वो अपनी महिल तक नहीं पहुंचे। महिल का मतलब होता है क्या? ये ज़रफ़ुल मकान यहाँ पे, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो महिला का मतलब कुर्बान गाह, ठीक है, जहाँ ना कुर्बान खाश करते हैं उसको, जहाँ उसको मैं खाश नहीं बोला है मुझे, जहाँ पे ज़िबाह करती है उसको, ठीक है, जहाँ जहाँ हम लोग को ज़िबाह किया जाता है, यानी कि मिना के अंदर। महिला से यहाँ मुराद क्या है? मिना, क्योंकि मिना के अंदर ही जो है कुर्बानी भेड़ को, हमने हज फुल पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने वो रिकॉर्ड किया है, फुल हज, जितना आप हज में याद है अच्छे से। वो है फिक, उसमें रखा था फिक कोर्स, आप देख सकते हैं उसमें, एंड के जो वीडियोज है वो हज के बारे में, ये सारे 5-6 वीडियो। और अदन क्या होता है? अदन, अरे यहाँ पे उसको अगर अदन एलिमेंट हो गया, यानी कि हर वो जरर जो किसी जानदार के रूह या जिस्म को पहुंचे, यानी कि तकलीफ, एलिमेंट, ठीक है। नुस्ख किसको बोलते हैं? नुस्ख कुर्बानी को, ठीक है।
جو نظر جو وہ نظر جو اللہ کے لیے پیش کیا جائے، ذبیحہ اس کو بولتے ہیں، نسک، ٹھیک ہے، سیکریفائس سیدھی. اور جو یہاں پہ آ گیا نا یہ کہ اذا کیا آ گیا یہ؟ ہاں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امانت میں آ جاؤ گے، تم سیکیور ہو جاؤ گے. چلیں، اذا اس کو بولتے ہیں اذا الفجائیہ، کیا بولتے ہیں؟ اذا الفجائیہ. میں ایسا زیادہ بول رہا ہوں، ڈر جائیں گے اب اس سے. یہ ظرف ہے اس کی طرح. اہل علم ظرف زمان، ظرف مکان، حروف المفاجئات، حروف المؤکد وغیرہ متعدد قول، لیکن یہ ظرف ہی ہے اس یعنی اس مستقبل اور اس ماضی کے لیے بھی آ جاتا ہے. اور کبھی کبھی آپ کو سمجھیے عربی کا مسئلہ ادھر نا، بہت سارے کبھی ماضی کے لیے آتا ہے اس، کبھی ادھر الفجائی آتا ہے. ان شارٹ وین لکھا ہے یہاں پہ، تو آپ وین ہی مانیے اس کو. اور تمتع نے دیکھا کہ تمتع کیا ہوتا ہے؟ جو فائدہ اٹھائے گا اس سے نا، اس سے اس نے فائدہ اٹھایا تمتع. اور اس کے بعد آیا تھا حاضر المسجد الحرام، جو ہوں گے حاضر المسجد الحرام. کہاں گیا حاضر المسجد الحرام؟ یہ رہا. یعنی کہ جو ہوں گے کہاں کے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا حاضر یعنی کہ رہ گیا مسجد حرام کے باشندے، اہل مکہ کے جو ہوں گے. حاضر المسجد الحرام، پریزنٹ نیئر دا مسجد الحرام کا کون ہو گیا؟ جو اہل مکہ ہوں گے، جو مکہ میں رہنے والے ہوں گے. اب دیکھیں گے ہم اس کا تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات جو یہاں پہ آگے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہاں اگر تم روکے جاؤ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو جائے قربانی میں سے وہ کر لو، ٹھیک ہے، اسے کر ڈالو، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے گی انسان کو، تو ایک جانور جو ہدی ہوتا ہے، ایک بکری اور گائے، ایک بکری یا گائے اور اونٹ کا ساتواں حصہ ہے نا، گائے یا اونٹ کا سیونتھ حصہ بھی کہتا ہے وہ قربانی، جو میسر ہوگا وہی ذبح کرنا ہے اس کو نہیں دے آگے جانے، اس کو وہی ذبح کر دینا ہے، ٹھیک ہے. سر منڈلا لینا ہے اس کو، منڈلال، منڈلال بولتے شاید، ٹکلا کرنا مطلب کاٹنا. اور وہ حلال ہو جائے گا. حلال کیا ہوگا مطلب کیا؟ اب وہ اس کی حرمت میں نہیں ہے. یعنی کہ جیسا احرام لگاتا ہے نا، میں نے احرام لگایا، اب مجھ پہ کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں. مجھے پرفیوم نہیں لگانی ہے، مجھے خوشبو نہیں لگانی ہے، مجھے کسی جانور کو مارنا نہیں ہے، مجھے ناخن نہیں کاٹنے ہیں، مجھے بال نہیں کاٹنے ہیں، مجھے کسی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا ہے، یا ایسے نہ مجھے کوئی بھیجنا چاہیے، ایسا کچھ ہے اس کے بارے میں. لا یخطب ولا یخطب، ایسے بولتے علماء. تو مجھ سے حرام یہ سب چیزیں کرنا، اب میرے اوپر حلال ہو یہ سب چیزیں کرنا، کیونکہ اب میں نے احرام کے حال سے نکل گیا. جب میں نے ٹکلا کر دیا، جب میں نے سب کچھ کیا، جو بھی مناسک عمرہ تھے وہ میں نے سارے کر لیے. 2 رکعت نماز پڑھی اس کے پاس ہم نے نا، مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، طواف سات کر دیے، مینا سعی کی صفا مروا کے درمیان میں، پھر اینڈ میں بال کاٹ دیے، تو میں حلال ہو جاتا ہوں اس کے بعد. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو حدیبیہ کے مکان، اور سنا ہوگا نا حدیبیہ کا واقعہ، ٹریٹی آف حدیبیہ ہے نا، اس میں ایسا ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہیں حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھی. اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے، حدیبیہ حرم سے باہر ہے. حرم جو ہے نا، حرم کے باہر کیا ہے؟ حدیبیہ. اور آئندہ سال اس کی قضا دو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری والے عمرہ کو کی قضا 7 ہجری میں کی تھی، ٹھیک ہے. لیکن صحابہ نے کہاں پہ قربانی کی تھی؟ حدیبیہ کے مقام پہ. اور حدیبیہ کہاں پہ؟ وہ حدود حرم سے باہر ہے، وہ حرم سے باہر ہے، لیکن وہ آئے تھے، ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی. اگر کوئی اور نکاح کے لیے پیغام بھیجے تو کیا اس سے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے، اگر کوئی عورت حج کر رہی ہے، کوئی مرد اس کو پیغام نہیں بھیج سکتا ہے نکاح کا. اگر کوئی مرد حج کر رہا ہے، وہ نہ اس کو وہی بول سکتی ہے نکاح کے بارے میں، ایسا وہاں پہ نہیں کرنا ہے. اس کو بولتے ہیں خطبہ، پروپوزل کو بولتے ہیں خطبہ. تو وہاں پہ خطبہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا. لیکن اگر بولے، نہیں بول سکتے وہاں پہ نہیں بول سکتے، ہے نا. ایک حدود احرا اسے پتہ نہ ہو. اگر اسے پتہ نہ ہو، مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کیا، لیکن کفارہ دینا پڑے نا اس کے لیے. کفارہ اگر اس نے ایسا کیا، مجھے بھی صحیح سے یاد ہے کفارہ کیا، میں پڑھ سکتا ہوں کتاب سے. اچھا، اب ہم یہاں پہ تھے. الحج اشہر معلومات. اچھا میں بھی تھوڑا سا اور پڑھنا ہے تفصیل میں. جو یہاں پہ آ گیا نا اس کے بعد یہ چیز کہ اگر پتہ بھی نہ ہو تو بھی اس کو پتہ کرنا چاہیے نا اس چیز کے بارے میں. اس کو پتہ کرنا ہے پہلے. مجھے اس کے بارے میں پورا پتہ نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں. اچھا، اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا یہ کہ تو جو قرآن میں
कर डालो और अपनी सरमन, ये पढ़ा हमने। अबे फोर्थ वाला, हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, और तुम अपने बालों को शेव करो यहाँ तक कि जो, अनटिल, और तुम ना करो शेव अपने बालों का, वला तहलिकु रूसकुम, तो अपने सरों का शेव ना करो, हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, यहाँ तक कि ना पहुंचे सैक्रिफिशियल एनिमल अपनी डेस्टिनेशन तक। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अ, इसका अत्फ व अतिम्मु हज्ज के साथ है, और इसका जो ताल्लुक है वो हालत अमन से है। यानी कि अमन की हालत में उस वक्त तक सर न मंडाओ, यानी कि अहराम खोल के हलाल मत हो जाओ जब तक तुमने तमाम मनासिक हज पूरे नहीं किए होंगे। यानी कि पहले कुर्बानी ही करनी है, उसके बाद इंसान को टकला करना है, बाल काटने हैं, ठीक है? उससे पहले ऐसा नहीं करना है, वही से मुराद है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि पहले है ना वो अतिमुल हज, तुम पूरा करो इसके जितने मनासिक हज के, पहले वो पूरे कर रहे हैं, एंड पे ही करना है, फिर इंसान हलाल हो जाता है। किससे हलाल हो जाता है? एहराम से हलाल हो जाता है, उस पर वो चीज़ें हलाल हो जाती है जो पहले हराम थी, ठीक है? दो मतलब होते हैं हराम के। हराम मतलब क्या? प्रोहिबिटेड, अनलॉफुल, है ना, जो मना किया गया जिससे। या हराम मतलब होता है हुर्मत वाला, इज्जत वाला। मस्जिदुल हराम क्या होता है? हुर्मत वाली, सैक्रेड मॉस्क। एक सवाल, हाँ अब बताइए सवाल। उसके बाद जो यहाँ पे ये आ गया ना कि खास सदका फफिदिया, तुम अब जिस शख्स ने फमन काना मिनकुम मरीदन, जो बीमार होगा, औ भी अदम मिन रासी, उसको सिर में दर्द दर्द होगा, ठीक है? जो शख्स तकलीफ की वजह से जो है, अलबत्ता तुम्हें से जो बीमार होगा या उसके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से वो सर नहीं मंडाला तो हो सकता होगा, तो उस पर फिदिया है। क्या है? फफिदिया तो मिन सियामिन, रोजे में से, और सदक़तिन, या सदक़े में से वो देगा क्या, जो है ये, अव नुस्ख, या कुर्बानी करेगा वो। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि उसको ऐसी तकलीफ हो जाए कि सर के बाल मंडाने पड़ जाए, तो उसका फिदिया ज़रूरी है। यानी कि उसको, वो भी हज ही कर रहा है, ऐसे मसला हो गया बालों में, उसको बाल कटवाने पड़े, मतलब कुछ कीड़े वीड़े चढ़ गए बालों के अंदर बहुत सारे, अब मर सकते हैं उनसे, अब वो कर रहे हैं ऐसा ही, ठीक है? हदीस की रोज से ऐसा शख्स जो है, उसको 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, उसको 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। फफिदियतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन, गिना इधर वर्क क्या, सियाम या सदका, अगर वो बाल काट रहा है, उसको मसला है कुछ, सिर में दर्द है उसको कुछ ना, मतलब प्रॉब्लम है सिर में, उसको जो है बहुत सारे आगे एक साथ, उसको अब बाल ही खाए खत्म करेंगे सारा वो। क्या बोलते, पेडिकुलस एसपीबी बोलते हैं ना उसको, खतरनाक होता है वो। अच्छा, एक बकरी जबाह करेगा वो, 6 मिस्किन को खाना खिला देगा, और एक बकरी को जबाह कर या एक बकरी को जबाह कर देगा, है ना? और यहाँ पे देखिए, आओ आओ आओ, सियामिन आओ सदकतन, फास्टिंग या सदका। सदका कितना करना है इसको? उसको 6 मिस्किनों को खाना खिलाना है। और उसकी कुर्बानी कितनी उसको करनी है? उसे कुर्बानी करनी है इतनी कि उसे एक बकरी जबाह करनी है, या वो रखता है 3 दिन रोजे। ये बात याद रखिए, अगर किसी शख्स को बाल पहले ही काटने पड़े, उसको कुर्बानी करने से पहले, हज के मनासिक पूरे उसने किए नहीं सारे, लेकिन उसको बाल काटने पड़े बिकॉज ऑफ सिर में दर्द, तो उसे क्या करना है? उसे फिदिया देना रमज़ान के 3, सॉरी रमज़ान नहीं, रोज़ों के 3 दिनों से। अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो सदका ऑफ 6 मिस्कीन वो देगा, या कुर्बानी करेगा एक बकरी की, ऐसा वो कर सकता है। उसको ऑप्शन तीनों खुले हैं। रोज़े के अलावा पहले दो फिदियों की जगह के बारे में इख्तिलाफ है। अब रोज़े तो रखनी है, उसके अलावा जो बाकी तो ना सदक़तन और नुसुक, यानी कि चैरिटी या सेक्रीफाइस, इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि खाना और खून मक्का में ही दे दे, बाज़ कहते हैं कि खाना और खून मक्का में ही दे देगा। इधर खाना है तो सदका करेगा, इधर खून देगा कहाँ पे? मक्का के अंदर ही। बाज़ कहते हैं कि रोज़ों की तरह इसके लिए भी कोई ख़ास जगह मुतय्यन नहीं है, यानी कि कहीं भी वो सदका दे सकता है, और कहीं पर भी वो कुर्बानी कर सकता है। लेकिन इमाम शौकानी जो है उसने इसी ताकीद को, इसी राय को ताकीद दी है। किस राय को? कि कोई भी जगह जो है वो मुतय्यन नहीं है, वो कहीं पर भी सदका दे सकता है या कुर्बानी कर सकता है, अगर उसने अपने बाल काट दिए बिफोर डूइंग ऑल द मनासिक ऑफ हज। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल है समझना। अगर कोई लड़की उम्रा करे और उसका कोई महरम ना हो, उसका कोई बेटा हो और वो 10 साल से कम हो, तो वो उम्रा कर सकती है। और वो जानवर ज़िबह करना हो, तो क्या वो लड़की खुद कर सकती है या उसे बेटे को करना होगा? मुझे इस बारे में सही से पता नहीं है, सच में मैं क्यों बताऊंगा ऐसे ही, वल्लाहु आलम। हराम इज सैक्रेड एंड हराम इज प्रोहिबिटेड, इज इट? हाँ बिल्कुल। हराम का मतलब होता है दो चीजें। नहीं नहीं, अल मस्जिदुल हराम, हराम क्या होता है? सैक्रेड, या हराम होता है क्या? प्रोहिब
प्रोहिबिटेड, दोनों मतलब हो जाते हैं इसके। जो 80% कुरानिक वर्ड्स उसमें लिखा है, उसने उसने पहले लिखा है हराम का मतलब होता है सैक्रेड भी, और हराम का मतलब होता है क्या, इज्जत वाला भी, दोनों मतलब होते हैं। कभी लगा वो क्या हराम, मतलब हराम की मस्जिद, नाउज़ बिल्ला। हराम मतलब क्या उधर, हुर्मत वाली ना, हुर्मत, सैक्रेडनेस वाली, एक मर्तबे वाली मस्जिद, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे। अच्छा, और हमें क्या पढ़ना था इसमें? हाँ, और जो यहाँ पे आ गया ना इसके बाद ये कि वो 3 रोजे तो हज के दिनों में रख ले वापसी में। देखिए फिर क्या आ गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे कि बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ, फ़इज़ा अमिन तुम, बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ, फ़मन तमत्तअ बिल उम्रती, बस जो शख्स उम्रे से हज कर ले, बिल उम्रती लिल हज, उम्रे से हज भी करेगा साथ में। तमत्तु बोल उसको, हज तमत्तु। हज तमत्तु मतलब होता है ऐसा हज जहाँ पे हज प्लस उम्रा किया जाता है एक ही साथ, एक ही एहराम बांधा जाता है, फॉर बोथ हज एंड उम्रा, जोड़ते हैं दोनों को, ठीक है। बस उसे जो कुर्बानी मैसर हो उसे कर डाले, फमस्तैसर मिनल हदी, ठीक है। उसके बाद फमन लम यजिद, ठीक है, जिसने नहीं पाया, यानी कि जिसे ताकत ही ना हो, ठीक है, फसियामु, वो रखा रोजे, सलासति अय्याम, 3 दिन के, फिल हज, हज के दौरान, तो हज के दिनों में वो रखा 3 दिन रोजे, और 7 वापसी में, वसबअतिन इज़ा रजअतुम, और 7 वापसी में। इसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे। अब देखेंगे हम हज की किस्में पहले पढ़नी है यहाँ पे थोड़ी बहुत समझ रहे हैं, वरना मैंने हज पढ़ाया था पहली बार। हज की 3 किस्में होती है। हज इफराद होता है, हज नंबर 1, टाइप नंबर 1 क्या होती है, हज इफराद। और हज इफराद क्या होता है, सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधना, मुझे सिर्फ हज करना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है, फर्द वन, एक चीज ओनली हज, मुझे सिर्फ हज करना है, उसको बोलते हैं क्या, हज इफराद। दूसरा होता है हज किरान, क्या होता है, हज किरान। हज किरान का मतलब होता है वो हज और उम्रा दोनों की एक साथ नियत करके एहराम बांधता है। मैं हज भी कर रहा हूँ साथ पे, और उम्रा भी कर रहा हूँ साथ में, खाली एक नियत बांध रहा हूँ फॉर बोथ हज एंड उम्रा। उसे क्या बोलते हैं, हज किरान। हज और उम्रा दोनों की एक साथ नियत करके एहराम बांधना, ठीक है, एक साथ नियत एहराम बांधना। इन दोनों सूरतों में तमाम मनासिक के हज की अदायगी से पहले एहराम खोलना जायज़ नहीं है। यानी कि जब तक हम पूरे हज की चीज़ें नहीं करेंगे, हमें मतलब जायज़ है ही, हम एहराम खोल देंगे। लेकिन जो हज तमत्तु होता है, इसमें भी हज और उम्रा दोनों की नियत होती है एक साथ ही, कि मुझे हज भी करना है और उम्रा भी करना है, जो यहाँ पे आ गया तमत्तु। लेकिन सिर्फ उम्रा की नीयत से एहराम बांधा जाता है, और उम्रा करके फिर एहराम खोल दिया जाता है। पहले उम्रा करते, एहराम बांधते, उम्रा करते, उम्रा खोल देते। उसके बाद फिर 8 ज़िलहिज्जा को हज के लिए मक्का जाते, नया एहराम बांधते। तमत्तु के मतलब होते हैं फायदा उठाने के, यानी कि इंसान फायदा उठाता है, बीच में एहराम खोल भी सकता है तमत्तु के अंदर। किरान में इंसान क्या करता है, हज प्लस उम्रा एक साथ, किरान होता है, किरान शायद करन से बन गया वो साथी, ठीक है, करीन से बन गया ना, शैतान होता है ना, वो करीन उसको बोलते हैं जो इंसान के साथ होता है। तो तमत्तु मतलब होता है वैसा हज जहाँ पे इंसान उम्रा करने के बाद एहराम खोल देता है, फिर हज करने के लिए नया एहराम बांधता है, लेकिन दोनों को साथ में नियत करता है, हज प्लस उम्रा, ठीक है, ये समझना है ऐसे। गोया दरमियान में एहराम खोलकर फायदा उठा लिया जाता है, और उसमें वो एहराम की पाबंदियों से खुला हो जाता है, किसमें, हज तमत्तु के अंदर। हज किरान और हज तमत्तु दोनों में एक हदी है, यानी कि एक बकरी, ठीक है, एक बकरी, चाहे हज तमत्तु कर रहा है या हज किरान कर रहा है, उसमें क्या करना होता है इंसान को, एक बकरी या फिर ऊंट या गाय का 7वां हिस्सा भी कुर्बानी देनी पड़ती है ना, 7th हिस्सा ऑफ ऊंट या गाय, या एक बकरी या एक ये भेड़। इस आयत में इसी हज तमत्तु का हुक्म बयान किया गया है, कि जो मुतमत्तिअ होगा, कौन होगा, मुतमत्तिअ। मुतमत्तिअ का मतलब होता है तमत्तु करने वाला। जो मुतमत्तिअ जो होगा, वो हस्बे ताकत, जितनी उसको ताकत होगी, अकॉर्डिंग टू हिज ताकत, 10 जिल हिज्जा को एक जानवर की कुर्बानी देगा, ठीक है। 10 जिल हिज्जा को, यानी कि ईद के दिन, यौमुन नहर उसको बोलते हैं ना, बड़ी ईद के दिन। अगर मिना के अंदर अगर कुर्बानी की ताकत ना हो तो 3 दिन रोजे रखेगा वो, है ना, यहाँ पे आ गया फमन लिम यजिद, अगर उसने नहीं पाया तो रख गया क्या, 3 दिन रोजे। फसियाम थलाथति अय्याम, देन ही शुड फास्ट 3 days। उसके बाद अ, और 7 दिन, वसबअतिन इज़ा रजअतुम, और 7 रोजे घर जाकर रखेगा, ठीक है। अय्याम हज जिनमें रोजे रखने हैं, अय्याम हज जिनमें रोजे रखने हैं, 9 जिल हिज्जा यौम अरफात से पहले, या फिर अय्याम तशरीक में उसको रोजे रखने हैं। यहाँ पे ना वो रखेगा अय्याम हज के अंदर रोजे, फसियाम सलासति अय्यामिन फिल हज,
वो रख गया 3 दिन रोजे हज के अंदर, और 7 दिन जब वो घर लौटेगा, तो उन वो 3 दिन कब रखेगा वो? 9 दिलहिज्जा से पहले पहले उसको रखना है, यानी कि अरफात के दिन से पहले 8 दिलहिज्जा तक वो रख सकता है। या फिर वो अय्याम तशरीक में रख सकता है, यानी कि 11, सॉरी, हाँ 11, 12, 13 जो दिन होते हैं उसमें वो रख सकता है दिलहिज्जा। ये लिखा गया है फजल कदीर के अंदर, इमाम शौकानी की जो तफसीर है उसमें। यानी तमत्तु। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या हो गया। तिल का अशरतुन कामिल, ये हो गई 10 दिन बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या हज करने के लिए, मुझे इस्तात नहीं, मैं एक भेड़ को मार दूंगा। अब मैं भेड़ को नहीं मार पा रहा हूँ, तो मैं रखता हूँ हज के अय्याम के अंदर 3 दिन रोजे, लेकिन बिफोर 9 दिलहिज्जा और आफ्टर और ड्यूरिंग द अय्याम तशरीक 11, 12, 13 दिलहिज्जा। उसके बाद जब मैं घर आ रहा हूँ मैं रखता हूँ और 7 दिन, हो गए 10 दिन रोजे, ऐसे मैं रख सकता हूँ। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम। ठीक है, ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले नहीं होंगे, जो नहीं होंगे, उसकी फैमिली नहीं होगी मस्जिद हराम की, यानी कि वो वहाँ के रहने वाले नहीं होंगे, वहाँ के बाशिंदे, बाशिंदे बोलते, बाशिंदे वहाँ के नहीं होंगे। यानी तमत्तु और इसकी वजह से हदी या रोज़े सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो वो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। यानी कि तमत्तु और इसकी वजह से हदी या रोज़े सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले। इधर वो करेगा कुर्बानी, कुर्बानी नहीं कर पाया तो रोज़े रखने हैं उसको, ये उनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले नहीं होंगे। मुराद इससे हदूद हरम या इतनी मुसाफत पर रहने वाले है कि इसके सफ़र पर कसर का इतलाक ना हो सकता हो। यानी कि इससे वो मुराद नहीं होनी चाहिए जो, जिन पे सफ़र का जो है अ, इतलाक हो सकेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम जाएंगे मक्का तक, हमें कहा जाएगा ना तुमने सफ़र किया है, हाँ। कोई होगा हदूद हरम में ही, उसको वो लगभग एक हिसाब से हरम में ही रहता है, तो उसके लिए हुक्म ये वाला नहीं है। ये उनके लिए है जिनके लिए जो मस्जिद हराम के हदूद में नहीं रहते होंगे। ठीक है। अगर कोई अगर कोई लड़की बीमार हो जाए हज करते वक्त या उम्रा के वक्त, तो क्या उसे करना चाहिए? मैंने क्या कोई दस, बेटा महरम है लेकिन वो बालिग होना चाहिए, मेंशन किया है। हाँ बिल्कुल, पहले महरम जो है वो बालिग होना चाहिए। कोई और ना हो तो क्या करना चाहिए? उसके बाद जाएंगे नीचे। सना मुश्किल आई थी बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही मुश्किल थी समझनी, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स थी ये। उसके बाद आयत नंबर 31, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। जो हज के लिए ऐसे मंथ है, अशहुर शहर उनका जमा है, मंथ है जो मालूमात, जो नोन मंथ है। हज के लिए कुछ नोन मंथ है। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के लिए कुछ मालूम, कुछ नोन मंथ है। फमन फरदा, बस whosoever undertakes therein, जिस शख्स ने फर्ज किया है, फरदा फीहिन। ठीक है, हज के महीने मुकर्रर है, अल हज अशहुर मालूमात, ذل लोन है हज के महीने, वो कौन है? ठीक है, वो कौन है? यानी कि शव्वाल, जिलक़ादा और जिलहिज्जा के पहले 10 दिन। शव्वाल से स्टार्ट, शव्वाल, जिलक़ादा और जिलहिज्जा के पहले 10 दिन, ये हज के अय्याम है। ठीक है, मतलब ये है कि उम्रह तो साल में हर वक्त जायज़ है, उम्रह तो साल में हर वक्त जायज़ है, लेकिन हज सिर्फ मखसूस दिनों में ही होता है। इसलिए इसका एहराम हज के महीनों के अलावा बांधना जायज़ नहीं है। हज का एहराम सिर्फ हज के महीनों में बांधना है, जो मालूम है, जो वेल नोन है, जो कि शव्वाल है, जिलक़ादा है और जिलहिज्जा के पहले 10 दिन है। उसके बाद यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज। ठीक है, फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले, जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले, फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज, जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले इन महीनों के अंदर। फला रफथ, उसे रफथ नहीं करना चाहिए। रफथ हो गया अपनी बीवी से मिलाप करना, यानी कि सेक्सुअल रिलेशंस कायम करना अपनी बीवी के साथ, उसको ऐसा नहीं करना है। वला फुसूका, और ना उसको फिस करना है, ना उसको लड़ाई झगड़ा करना है। वला जिदाल, और ना उसे लड़ाई झगड़ा करना है। फुसूक बोलते हैं किसको, मतलब ये इसको ना फिस कर गुनाह करने को, विकेटनेस यहाँ पे लिखा है, यानी कि ना वो गुनाह करेगा। और वला जिदाल, ना वो जिदाल करेगा, ना वो लड़ाई करेगा। बोलते हैं जदाल नफर, जदाल क्या होता है? लड़ाई करने वाला। दज्जाल क्या होता है? को बोलता है दज्जाल को जदाल ना, कोई बोलता है दज्जाल को जद्दाल।
दज्जाल हो गया दजल देने वाला, धोखा देने वाला। जदाल क्या होता है? लड़ाई करने वाला, जो जिदाल करेगा। ठीक है। जद्दाल बहुत जिदाल करने वाला। दज्जाल बहुत दजल करने वाला, धोखा देने वाला। ठीक है, जिदाल क्या होता है? लड़ाई करना, ठीक है। जिदाल होता है लड़ाई करना। फमन फरद फीहिन अल हज फला रफथ वला फुसूक फिल हज, उसे हज के अंदर न रफस करना, न फुसूक करना, न जिताल करना है। वमा तफ़अलु मिन खैर, और जो कुछ तुम खैर में से अमल करते हो, जो कुछ तुम काम करते हो फ्रॉम गुड, तुम जो भी नेक अमल करते हो, अच्छा काम करते हो, या अल्लाह, वो जानता है कौन? अल्लाह ताला। जो भी हम करते हो कौन जानता है? अल्लाह ताला। हमारी नियतों को भी कौन जानता है? अल्लाह ताला। वतज़व्वदू, एंड टेक प्रोविजन। वतज़व्वदू का मतलब क्या होता है? टेक प्रोविजन, यानी कि तुम तोशा ले लो। तोशा बोलते हो उर्दू में, तुम तोशा ले लो, यानी कि तुम ज़ादिरा लो। मुझे जाना है सफ़र के लिए, मुझे ज़ादिरा साथ ही लेना है, यानी कि भूख लगी खाना साथ में लेना है, प्यास लगी पानी साथ में लेना है। घोड़ा भी साथ में लूंगा, ताकि घोड़ा नहीं, ऊँट लूंगा अगर सिर सामने होगा। उसको बोलते होते ज़व्वदू, तुम तोशा ले लो, तुम ज़ादिरा ले लो, ठीक है। फ़इन्न खैर ज़ाद तकवा, लेकिन ये याद रखो, बेशक सबसे बेहतरीन प्रोविजन जो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगी चीज़, वो क्या है? वो तकवा है। तकवा इंसान को हर जगह साथ होना चाहिए, फिर सिर्री वल अलन। चाहे इंसान सीक्रेटली चीज़ें करता हुआ, काम करता हुआ, या अलानी तौर पे पब्लिकली कोई काम करता हुआ, हर जगह पे तकवा होना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं दिखाता हूँ लोगों के सामने, मैं तकवा वाला हूँ, दाढ़ी वाला हूँ, कोई दिखाती अबे वाली हूँ, अच्छी हूँ। कोई स्कूल में दिखाते, कॉलेज में दिखाते, या मस्जिद में दिखाते, घर में अजीब से होते, जब प्राइवेट में बैठे होते अजीब से होते। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हदीस में आ गया क्या? हदीस में आ गया कि, इसलिए हदीस में क्या आ गया? इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त, तुम डरो अल्लाह ताला से, तुम जहाँ कहीं भी होगे। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे खड़ा लोगों सड़क पे मैं अच्छा हूँ, घर में अजीब होगा। तो हर जगह पे अल्लाह का खौफ रखना है। वो अतबी सय्यअतल हसनत तमहुहा, गुनाह के बाद नेक काम करने चाहिए, वो गुनाह को मिटा देते हैं। व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसनिन, और लोगों से अच्छे अखलाक से बरतना चाहिए। वत्तकूनी, और तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही डरो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा ही तकवा इख्तियार करो। या उलिल अलबाब, ए अंडरस्टैंडिंग वालो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मुझसे ही डरो। एक बार कहा था बिलाल बिन अब्दुल्ला ने, उसने पढ़ा था वाज इस पे, उसने कहा था अल्बाब जो है ना, या उल अलबाब, ये लुब से बन गया। लुब बोलते हैं अरबी में जैसा गूज, अच्छा तब लुब अरबी पर, जैसे होता है ना आलमंड, होता है आलमंड, बास होता है कवर, अंदर से क्या होती है? वो गोजी होती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लुब। तो यानी कि जो क्रीम ऑफ सोसाइटी होती है, जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी होती है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी होते हैं, जो मतलब असली लोग होते हैं सोसाइटी के, उनको बोलते हैं अल्बाब, अंडरस्टैंडिंग वाले। उस सेंस में समझना है ये, गोजी के सेंस में जो खाते हैं। तो ये उसने कहा था, मुझे याद आ रहा था, उसने एक बार कहा था बिलाल बिन अब्दुल्ला ने। हम कहाँ पहुंचे थे? अच्छा, मैं पढ़ा था ये, फला फुसूक वला जिदाल फिल हज। अच्छा, यहाँ पे आ गया ना कि उसे ना उसको रफस करना है, ना उसको फसूक करना है, ना जिदाल करना है हज के दौरान। तो इसका मतलब हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले इसने यहाँ पे बहुत लिखा है, वो हम पढ़ेंगे पहले। इसने यहाँ पे मसला लिखा है, एक मसला देखिए क्या है। हज किरान या हज इहराम, हज इफरात का एहराम अहले मक्का मक्का के अंदर से ही बांधेंगे। जो अहले मक्का होंगे, जो मक्का में रहते होंगे, जिनको सफ़र नहीं करना पड़ेगा मक्का तक पहुंचने के लिए, वो हज किरान या हज इफरात जो होगा, वो मक्का के अंदर ही एहराम बांधेंगे, क्योंकि मक्का में ही रहते हैं। अलबत्ता हज तमत्तु की सूरत में उम्रे के एहराम के लिए हरम से बाहर हल में जाना उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन चाहे वो अहले मक्का ही क्यों ना हो, अगर वो हज तमत्तु कर रहे हैं, इफरादा किरान नहीं कर रहे, तो उन्हें हुदूद हरम से बाहर निकल के एहराम बांधना है। जैसे कि फतहुल बारी में साबित है, जो ना शरह सही बुखारी की, फतहुल बारी इब्न हजर की किताब जो है, और मुअत्ता इमाम मालिक में। इस तरह आफाकी लोग हज तमत्तु में 8 जिलहिज्जा को मक्का से ही एहराम बांधेंगे। आफाक क्या होता है? शायद जो बाहर से आएंगे ना, असल तो आसमानी लोग जो होंगे, यानी कि जो बाहर से आएंगे, जो ये नहीं होंगे, जो मतलब ये नहीं होंगे, जो मुकीम नहीं, जो मुसाफिर होंगे, वो 8 जिलहिज्जा को मक्का से ही एहराम बांधेंगे। अलबत्ता बाज़ उलमा के नज़दीक अहले मक्का को उम्रे के एहराम के लिए हुदूद हरम से बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ न की नज़दीकी भी राय है। इसलिए वो हर तरह के हज या उम्रे के लिए अपनी अपनी जगह से उम्र अपना एहराम बांध सकते हैं। कुछ बोलते हैं उनको हुदूद हरम से बाहर निकलना है।
اس میں اختلاف ہے. اب اس میں تنبیہ ایک نوٹ لکھا ہے کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے صرف دو قسم کی عمریں ثابت ہیں. ایک وہ جو حج تمتع کے ساتھ وہ کیا جاتا تھا. دوسرا وہ عمرہ جو عمرہ مفردہ تھا، جو ایام حج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے وہ سفر کیا کرتے تھے، صرف عمرہ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرتے صرف یا تو حج کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں حج تمتع، یا کرتے وہ عمرہ مفردہ الگ کرتے تھے عمرہ باقی حج کے ایام کے بغیر، باقی ایام کے اندر، باقی دنوں کے اندر. باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین حل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے. ٹھیک ہے. باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین حل سے عمرہ کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے، الا یہ کہ جس کے احوال و ظروف حضرت جیسے جن کے احوال و ظروف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسے ہو. ٹھیک ہے. اس نے یہاں پہ لکھے زاد المعاد کی ریفرنس. حدود حرم سے باہر کے علاقے کو حل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بیرون مکہ سے آنے والے حجاج کو آفاقی کہتے ہیں نا. وہی حل ہو گیا حدود حرم سے باہر احرام باندھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے شاید احرام کا زبان تھا پھر جب ان کو شاید ہے نا اس مسجد سے اس کیا بولتے ہیں. اب مجھے اچھے سے یاد نہیں آ رہا ہے اس کے بارے میں، اس لیے ہم آگے چلیں گے. اچھا. کیونکہ جو یہاں پہ آ گیا نا کہ اس کو رفث نہیں کرنا ہے، فسوق نہیں کرنا ہے، جدال نہیں کرنا ہے حج کے اندر. حدیث میں بھی یہ بھی آ گیا ہے. حدیث میں آ گیا ہے من حج هذا البیت، جس نے اس گھر کا حج کیا، یعنی کہ کس کا حج بیت اللہ جس نے کیا، فلم یرفث. ٹھیک ہے. اور اس نے شہوانی باتیں نہیں کی، اس نے رفث نہیں کیا، اس نے شہوانی باتیں نہیں کی، یا شہواتی اس نے ایکٹ نہیں کیا. ولم یفسق، نہ اس نے فسق کیا، نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس نے کوئی فسق فجور کیا. خرج من ذنوبہ، وہ پاک ہو جاتا ہے اپنے گناہوں سے. کیوم ولدتہ امہ، جس جیسے اس دن پاک تھا جس جب اس کی ماں نے جنا تھا. جب ماں بچے کو جنم دیا وہ گناہوں سے کیا ہوتے ہیں پاک. تو جس نے حج ایسے کیا، جس نے رفث نہیں کیا، فسوق نہیں کیا، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کو نیا پیدا ہو گیا. اتنا وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے وہ شخص. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ صحیح بخاری کی حدیث میں کتاب المحصر باب قول اللہ عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کے اندر یہ آ گیا ہے. اب جو یہاں پہ اگر کہ سب سے جو بہترین پروویژن ہے وہ کیا ہے، زاد التقوا، وہ تقوا ہے. تو تقوا سے مراد یہاں پہ سوال سے بچنا ہے. تقوا کیا ہوتا ہے، بچنا ہے نا. تقوا ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، ڈال رکھنا گناہوں اور خود کے درمیان میں. پرہیزگار اس کو بولتے ہیں، پرہیزگار بننا ہے، یہ پرہیزگار. میں بولتا ہوں متقی اس کو بھی جو شوگر کا پیشنٹ ہوگا، جو شوگر نہیں کھاتا وہ متقی نہیں حساب سے بچتا ہے شوگر سے. تو لٹرل ٹرمز میں تقوی کا مطلب ہوتا ہے سوال سے. یہاں مطلب کیا ہے، سوال سے بچنا. یعنی کہ بعض لوگ بغیر زاد راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے. اللہ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط کر دیا ہے اور زاد راہ لینے کی تاکید فرمائی ہے کہ تمہیں زاد راہ لینا ہی لینا ہوگا. ٹھیک ہے. زاد راہ لینا ہے، پہلے اپنی سارے ایفرٹس دینے ہیں، تب اللہ پہ چھوڑنا ہے. ایسا نہیں اللہ پہ چھوڑنا، وہ کیا ہو گیا اللہ پہ چھوڑنا. پہلے اپنے سارے ایفرٹس دینے تب جا کے اللہ پہ چھوڑنا ہے. اس کو بولتے توکل. اور سیدھے اللہ پہ چھوڑنا کچھ نہیں کرنا اس کو بولتے تواکل، جو کہ صحیح نہیں ہے. وہ توکل نہیں ہوتا ہے، وہ تواکل ہوتا ہے. فاتح اس کا دیکھا میں بول رہا ہوں. اچھا جو یہاں پہ آ گیا نا ایک اور چیز تھرڈ. اچھا اتنا ہی تھا انشاءاللہ آج کے لیے، باقی ہم کل پڑھیں گے. میں نے حج اچھے سے نہیں پڑھا ہے، میں نے زیادہ کتابیں نہیں پڑھی ہے اس کے بارے میں. میں نے خالی ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی ہے اس کے بارے میں. اس لیے مجھے پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ. میں پڑھوں گا اچھے سے اس کے بارے میں تاکہ میں آپ کے سوالوں کو جواب دے سکوں اگلی بار سے انشاءاللہ.